very good morning, class 5. So yesterday I have sent you, I explained you this lesson number, My Mother is the Principal. That was chapter number 11. I explained you, I revised you, and after that I sent you the assignment also. So today I will send you the answer key so you can check your answer, so where you were wrong, right? So we move to the next, that is chapter number 12. I cannot remember my mother. It's 12. I cannot remember my mother. So this is by Rabindranath Tagore. This is by Rabindranath Tagore. तो ये हमारे बहुत ही फेमस पोएट हैं, राइटर हैं, and he was a versatile person. So Rabindranath Tagore, I was talking about Rabindranath Tagore. He was a great poet, writer. He was a versatile person because he was multi-talented. उनमें बहुत सारा टैलेंट था. राइटिंग्स भी लिखते थे, जैसे उन्होंने स्टोरीज भी लिखी हैं, पोएम्स भी लिखी हैं, एंड ही वॉज अ वेरी गुड vocalist also. Then moreover, he was a very good sculptor. He had a very fine art. He was very good in fine art also. He was a great sculptor, painter, artist. So in short, we can say he was a versatile personality, a multi-talented person. So he has written this poem, I Cannot Remember My Mother. So this poem is about a child, and he's recalling his mother. Like, you are also very you can say you are in a growing age, but when you used to be a child of 3 or 4 years, so at that time, do you remember anything of the days of your childhood? आपको कुछ याद आता है कि childhood में बचपन की आपकी कोई याद आपको याद आती है कि आप ऐसा करते थे या ऐसा करते थे? कुछ चीज़ें जो हैं हमारे माइंड में रह जाती हैं, तो आपके भी ऐसे माइंड में होगा, कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी जो आप बार बार रिकॉल करते हैं अपने चाइल्डहुड में. तो ऐसे ही ये बच्चा है एक छोटा सा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बच्चे की तरफ से ये पोएम मदर के लिए लिखी है. आई कैन नॉट, यू ओपन योर बुक्स एट पेज 115. दिस इज पोएम नंबर, दिस इज लेसन नंबर 12. आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. So I cannot remember my mother only sometimes in the midst of my play. So what the child thinks, the Rabindranath Tagore has beautifully written in this poem. He says, I cannot remember my mother only sometimes in the midst of my play. Means मैं अपनी मदर को रिमेंबर नहीं करता, only sometimes. कब बहुत कम होता है ऐसा, only sometimes in the midst of my play means जब मैं खेल रहा होता हूँ. in the middle, midst means in the middle. जब मैं खेल रहा होता हूँ तो खेलते वक्त मुझे मदर याद नहीं आती हैं. A tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. A tune seems to hover over my playthings. एक ट्यून जो दिमाग में उसके, hover means आसपास, घूमती रहती है, सुनती रहती है, उसके गूंजती रहती है. Over my playthings means the toys. The boy is playing with his toys. When he is playing, so sometimes he cannot remember her mother. A tune seems to hover. उसकी मदर जो गुनगुनाती रहती थी कुछ गाना या कोई लोरी या ललाबाई, जिसे लोरी को हम ललाबाई कहते हैं, तो वो उसके टॉयज़ के ऊपर, उसको टॉयज़ के ऊपर नहीं, मीन्स वेन एवर ही इज़ प्लेइंग विथ हिज टॉयज़, सो समटाइम्स दैट ट्यून सीम्स टू होवर, आसपास उसके गूंजती रहती थी वो, लिंगरिंग.
द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रैडल। तो एक ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसा सॉन्ग जो उसकी मदर हमेशा गुनगुनाती रहती थी जब वो उसके क्रैडल को रॉक करती थी, मीन्स ऐसे झूला देती थी। रॉकिंग माई क्रैडल मीन्स आराम से ऐसे हम जब उसे किसी चीज़ को मूव करते हैं जेंटली, दैट इज़ कॉल्ड एज रॉकिंग। रॉकिंग चेयर भी होती है जो हम ऐसे ऐसे आगे पीछे करके जाते हैं, टू एंड फ्रो करती है, दैट इज़ कॉल्ड रॉकिंग। मीन्स किसी चीज़ को जेंटली टू एंड फ्रो मूवमेंट में रखना। हम वाइल रॉकिंग माई क्रैडल, हम मीन्स गुनगुनाना, ओके। हमिंग अ सॉन्ग, हमिंग मीन्स टू सिंग विद द क्लोज लिप्स, हम करते हैं ना, सो दिस इज कॉल्ड हमिंग। जब हम मुंह बंद करके सिर्फ गुनगुनाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड हमिंग। So the child says he expresses his feeling that I cannot remember my mother when in the midst of my, only sometimes in the midst of my play, कि जब मैं खेल रहा होता हूँ तो उस वक्त मुझे मदर की याद नहीं आती है। अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, एक प्यारी सी ट्यून जो मेरी मदर गाती थी, वो ट्यून मेरे टॉयज़ के ऊपर गूंजती रहती है। उनकी जो आवाज़ है वो ट्यून सी उनके उसके जो माइंड में आसपास गूंजती रहती है। हॉवर मीन्स लिंगर करती रहती है। ऐसे लगता है कि मदर अभी भी वो जो ट्यून, जो गाना वो गाती थी या जो ललाबाई जो मुझे सुनाती थी, वो अभी भी मेरे आसपास लिंगर ऑन करती रहती है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग, जो वो ट्यून किसी सॉन्ग की वो जो गुनगुनाती थी जब वो मेरा क्रैडल को रॉक करती थी, मीन्स हिलाती थी क्रैडल को। Now come to the second stanza. I cannot remember my mother, but when in the early morning, autumn morning, the smell of the shively flowers floats in the air. So he says, I cannot remember my mother. कब कब वो अपनी मदर को रिमेंबर नहीं करता? फर्स्ट स्टेंजा में तो उसने बोला है इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले, कि जब वो खेल रहा होता है उस वक्त उसे अपनी मम्मा की याद नहीं आती है, कभी कभी। ओनली समटाइम्स, ओनली समटाइम्स मीन्स कभी कभी जब वो खेल रहा होता है तो उसे अपनी मम्मा की याद नहीं आती। और जो वो ट्यून, जो वो गाना गुनगुनाती रहती थी, वो गाना उसके आसपास लिंगर ऑन होता रहता है जब वो अपने टॉयज़ के साथ खेलता है। और वो गाना जो उनकी मदर उनके क्रैडल को रॉक करते वक्त गुनगुनाती थी, वो गाना उस बच्चे के आसपास लिंगर ऑन होता रहता है। Second stanza. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning. So he says कि I cannot remember my mother, मुझे मेरी मदर की याद नहीं है, मुझे मेरी मदर याद नहीं है, बट अर्ली ऑटम मॉर्निंग उसको याद आ रही है कि ऑटम सीजन था और अर्ली मॉर्निंग मॉम क्या करती थी, द स्मेल ऑफ द शिवली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर। अब वो बच्चा इतना छोटा है, हो सकता है उसकी मदर उसके पास नहीं है। इट इज़ नॉट क्लियर दैट वाई हर मदर इज़ नॉट हियर, मे बी शी इज़ नो मोर नाउ। सो ही सेज दैट आई कैनॉट रिमेंबर, मुझे मेरी मदर की याद नहीं है, पर अर्ली ऑटम मॉर्निंग में शिवली फ्लावर्स होते हैं जो बहुत खुशबू वाले होते हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इनकी सेंट बहुत अच्छी होती है। तो ये तो उसकी मदर जो है, शिवली फ्लावर्स की जो खुशबू थी वो हवा में तैरती थी। जब आप वो फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं, या तो पूजा के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप यहाँ पे बालों में लगा रहे हैं, या तो we'll read and come to know that what use she does of these flowers. The scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. Yes. सो ही सेज़ कि मुझे मेरी मदर याद नहीं है, बट उनकी अर्ली ऑटम मॉर्निंग में शिवली फ्लावर्स की जो खुशबू है वो हवा में तैरती हुई, फ्लोट करती हुई मुझ तक आती है। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल मीन्स टेम्पल में जब लोग वो शिवली फ्लावर्स पूजा के लिए अर्पित करते हैं तो वो जो फ्लावर्स की खुशबू है, जो सेंट है, वो मुझ तक पहुंचती है फ्लोट करती हुई एयर में। इट कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ अ मदर। तो उस वक्त जो सेंट आती है फ्लावर की टेम्पल से, शिवली फ्लावर्स की,
उस फ्लावर्स की सेंट से मुझे मेरी मदर की याद आती है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में वो बोलता है कि मुझे आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मुझे मेरी मदर याद नहीं है, पर उनको उसको क्या चीज़ याद आ रही है मदर की? उसका गुनगुनाना, वो सॉन्ग जो वो गाती थी जब वो उसका क्रैडल रॉक करती थी। सेकेंड स्टेंजा में ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट श्यूली फ्लावर्स, द सेंट ऑफ द श्यूली फ्लावर्स, मे बी हर मदर यूज टू वर्शिप, use that flowers in worshipping, or she used that flowers in her hair. So the scent of the flowers which is coming from the temple, it makes him, it feels as he can feel that he recalls her mother. The scent of the flowers, it comes to him as a scent of his mother. In the third stanza, he's saying, I cannot remember my mother, only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. So again in the third stanza he is saying that he does not remember, उसको उसकी मदर याद नहीं है. I cannot remember my mother because he is too small. उसको नहीं याद उसकी मदर कैसी दिखती थी या कैसी थी, बट कुछ चीज़ें हैं जो उसकी मदर से रिलेटेड हैं जो उसको उसकी मदर की याद करवा रही हैं. So in the third stanza he is talking about that I cannot remember my mother only when, जब क्या होता है, when from the bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, कि जब मैं अपनी बेडरूम की विंडो से बाहर देखता हूँ, इन द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई मीन्स मैं आसमान की तरफ देखता हूँ. व्हेन आई लुक आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैं बेडरूम की अपनी विंडो से जब चेहरा बाहर निकाल के एकदम वाइट ब्लू स्काई में जब देखता हूँ, I feel the stillness of my mother's gaze on my face. So that time he feels as if her mother is watching her, gazing him. Gazing means बहुत ध्यान से जब आप किसी चीज़ को लगातार देखते हैं, that is called gaze, right? So at that time he feels as if his mother is gazing at her when he looks out of his bedroom window into the wide blue sky. He can feel the gaze of his mother looking at him in a very loving way. My mother's gaze on my face has spread all over the sky. So he can feel that when he looks out of the window of his bedroom and when he looks at the wide blue sky, he can feel the gaze of his mother, the stillness of his mother ऑल ओवर स्प्रेड इन द स्काई. उसको ऐसा लगता था कि पूरा जो स्काई है वो उसकी मदर की गेज से, वो पूरा उसकी मदर है, मीन्स उसकी जो आँखें हैं, जो उसको जो ब्लू स्काई दिखता था उसमें से उसे ऐसी फील आती थी एज इफ हर मदर इज़ वॉचिंग हर, गेजिंग एट हर, उसको ध्यान से देख रही है उसकी मदर. गेज होता है जब आप लगातार किसी की तरफ देखते रहते हैं फिक्सडली, दैट इज़ कॉल्ड द गेज. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल emotions what the Rabindranath Tagore has written in this poem. So he want to tell you. So it is a very very beautiful poem. I really enjoyed explaining you. I really love this poem. कितना अच्छा पोएट ने डिस्क्राइब किया है बच्चे की फीलिंग को, that his mother is not with him and how he remembers. Just imagine कि उसकी मदर उसके सामने नहीं है, उसके पास नहीं है, बट फिर भी कितनी सारी बातें हैं मदर की जो उसको याद आ रही हैं, जिससे उसको उसकी मदर की याद आती है. ऐसी बातें जो इतनी सुंदर पोएट ने लिखी हैं इस पोएम में. आई रियली लव दिस. आई होप दैट यू पीपल आर ऑल्सो एन्जॉइंग दिस पोएम. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पोएम. It is telling you the emotions of the child, how he is connected to his mother. So in the first stanza, what is that thing that makes him recall his mother? In the first stanza, it is the tune that seems to hover around him. वो ट्यून है फर्स्ट स्टैंजा में, वो ट्यून है, वो गाना है, वो ललाबाई है, जो भी उसकी मदर उसके लिए गाती थी वो है.
जो उसके लिए गाती थी। तो फर्स्ट स्टैंजा में वो ट्यून से उसको उसकी मदर की याद आती है। इन द सेकेंड पैराग्राफ, आई के नॉट रिमेंबर माई मदर बट इन द अर्ली ऑटम सीजन। इन द सेकेंड स्टैंजा जो श्यूली फ्लावर्स की सेंट है उसको वो उसकी मदर की याद करवा रही है। मे बी उसकी मदर पूजा करती थी तो उस वक्त वो यूज़ करती थी, या वो अपने बालों में लगाती थी। तो जो सेंट ऑफ फ्लावर्स है, श्यूली फ्लावर्स, दैट इज़ मेकिंग हिम रिमेंबर हर मदर. And in the third stanza is the that is very beautiful thing, that when he looks out of the sky he can feel that his mother is gazing at her. कि उसको पूरा जो आसमान है, वाइट ब्लू स्काई है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसमें उसकी मदर उसको देख रही है, प्यार से गेज कर रही है उसकी तरफ. So in these three stanzas, Rabindranath Tagore has just beautifully written the emotions of the child, that how he is expressing emotions towards his mother. उसने कैसे बच्चा अपनी मदर के लिए प्यार को एक्सप्रेस कर रहा है. It is really very beautiful poem. I loved it. So I have explained you very properly, and now we will discuss the question answers also. Suppose I can give you this, I cannot remember. हम first paragraph ले लेते हैं. RTC. RTC is reference to contest. Reference to context. इसका मतलब होता है ये. तो इसमें क्या होता है, हम आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं या कुछ लाइंस दे देते हैं. तो हम पहले लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, आई कैनॉट वाला. आई कैनॉट रिमेंबर. फर्स्ट पैरा है ये, रॉकिंग माई क्रैडल. रॉकिंग माई क्रैडल. तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले. ठीक है, एक पैराग्राफ आपको दे दिया, इसमें से मैं क्वेश्चंस दूंगी आपको. सो हाउ यू विल डू दिस. सो इन फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट आंसर से हम क्वेश्चंस बनाएंगे. आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले. तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं. पहला क्वेश्चन हो सकता है दैट व्हेन डज ही नॉट, yeah, so we can make, what is the, which word means in the middle of, which word means in the middle of. तो आप फर्स्ट टेंसा पढ़िए. ये मैंने आपको फर्स्ट टेंसा दिया है, मीन्स इसी में से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी. तो इस फर्स्ट टेंसा में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है इन द मिडस्ट ऑफ. सो द आंसर इज इन द मिडल ऑफ. तो इसमें हमारा जो सेकेंड लाइन है वो पढ़िए, ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले. सो द वर्ड इज मिडस्ट. सो दिस मीन्स इन द मिडल ऑफ. क्वेश्चन नंबर 2, what hovers over the playthings. What hovers over the playthings. ऐसी क्या चीज़ है जो उसकी प्लेथिंग्स पे हॉवर करती है. हाँ जी, कौन सी लाइन में है ये. थर्ड लाइन पढ़िए. अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्लेथिंग्स. अ ट्यून, तो क्या होवर कर रही है. अ ट्यून hovers over my playthings. Now the third is, so who is she in this. Who is she. she कौन है इसमें. she used to. so who is she. थर्ड हमारा क्वेश्चन हो सकता है, who is she in the stanza. हाँ जी, फोर्थ लाइन पढ़िए. द ट्यून ऑफ सेम सॉन्ग दैट शी यूज टू. नाउ हु इज शी इन द पोएम. शी कौन है पोएम में. पोएट्स मदर. किसके बारे में बात हो रही है. शी कौन है. पोएट की मदर. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द शी डू व्हाइल हमिंग द सॉन्ग. सो व्हाट डिड शी डू. What did she do while humming
द सॉन्ग। क्या करती थी वो? सॉन्ग हम करते हुए क्या करती थी उसकी मदर? लास्ट लाइन पढ़िए। हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल। सो शी यूज टू रॉक माई क्रेडल वाइल हमिंग। तो वो हमिंग करते हुए क्या करती थी? शी यूज टू रॉक माई क्रैडल, झूला देती थी मेरे क्रैडल को। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम डाल सकते हैं। और मैं लास्ट में ये भी डाल सकती हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि ये जो है, ये जो हमने स्टैंजा लिया है कौन सी पोएम से ले, तो आपने नेम लिखना है। द नेम ऑफ द पोएम इज आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर। इज इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर। So this is the name of the poem and poet's name is, मैंने पूछा है ना poet का भी, तो poet's name is रविंद्रा नाथ टैगोर। So this is how you have to answer this। ये स्टैंजा दे दिया तो इसी में से क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको। सेकेंड स्टैंजा दे दूंगी तो सेकेंड स्टैंजा में से आपको क्वेश्चंस दे दूंगी। ऐसे करके हमने, इसको हम आरटीसी बोलते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट देती हूँ, ये आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको कल इसकी असाइनमेंट दूंगी तो आपको ऐसा ही दूंगी। नाउ वी कम टू द second paragraph। I cannot remember my mother, but when in the early morning the smell of the shiuli flowers float in the air। So this is the second paragraph। ये हमारा सेकेंड स्टैंजा है। आई कैनॉट से फिर से स्टार्ट करेंगे हम और पूरा लिखेंगे नहीं और सेंट ऑफ माई मदर लिख देंगे यहाँ। सेंट ऑफ माई मदर, ये हो गया। ये हमारा सेकेंड स्टैंजा है। अब इसमें से हम क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें विच सीजन इज मैंशनड हियर? विच सीजन इज मैंशनड हियर? हाँ जी, कौन सा सीजन मैंशनड है इसमें? सेकेंड लाइन पढ़िए। बट व्हेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, तो अर्ली ऑटम, तो इसमें कौन सा सीजन मेंशन्ड है? ऑटम। सेकेंड, व्हाट डू यू थिंक आर शिवली फ्लावर्स यूज्ड फॉर? व्हाट आर शिवली फ्लावर्स यूज्ड फॉर? किसके लिए यूज हो रहे हैं हमारे शिवली फ्लावर्स? हाँ जी, इसी में है। इसी स्टैंजा को आपने पढ़ के इसमें से आंसर देना है। The smell of shiuli flowers float in the air, the scent of the morning service in the temple. So it is the, what do you think are the shiuli flowers used for? It is used for the morning service. Shiuli flowers are used for worshipping। पूजा के टाइम यूज होते हैं ना, तो हम ये लिख सकते हैं शिवली फ्लावर्स आर यूज फॉर वर्शिपिंग इन टेम्पल्स। ठीक है। थर्ड, व्हाट इज द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विस? व्हाट इज द सेंट ऑफ मॉर्निंग सर्विस? किस चीज की सेंट आ रही है?
The scent of Shivli flowers. The scent of Shivli flowers used in the temple. Then fourth is, what do you learn about the poem's mother from this stanza? So, fourth question is, what do you learn about the poet's mother? What do you learn about poet's mother? What do you learn about the poet's mother from this stanza? The answer is that her mother used to maybe her mother used to worship God in the early morning. So the scent of Shivli flowers, the poet's mother used to worship God with Shivli flowers. ठीक है, इसलिए इस स्टैंजा से हमें यही पता चलता है कि मे भी उसकी जो मदर है वो भी शिवली फ्लावर्स ही यूज़ करती होंगी पूजा के लिए, तो इसीलिए जब बच्चे को मंदिर से खुशबू आती है शिवली फ्लावर्स की तो उसको उसकी मदर की याद आ जाती है. इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल पोएम. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएट. आई कुड नॉट रिमेंबर. आपको फिलिप्स भी दे सकती हूँ मैं. आई कुड नॉट डैश द आंसर सो आई डिड नॉट रेज माई हेड. I could not remember the answer, so I did not raise my head. The sun is in the dash of the 8 planets. सन कहाँ पे है? प्लैनेट्स आपने सोलर सिस्टम पढ़ा होगा, तो सन कहाँ पे प्लेस्ड है? इन द मिडेस्ट. तो ये हमने सारे वर्ड्स जो हैं ये हमने पोएम से लेने हैं. जैसे रिमेंबर पोएम से लिया, मिडेस्ट पोएम से लिया. द UFO डैश ओवर आवर हेड बिफोर फ्लाइंग अवे. होवर्स. Right? This word is also from the poem. She put the baby to sleep in his. Baby कहाँ सोता है? Cradle में. This word is also from the poem. Dash is known as a fall in America. अमेरिका में जो एक सीज़न है जिसका नाम फॉल है, तो यहाँ पे वो कौन सा सीज़न है? तो इस पोएम में कौन से सीज़न की बात हुई है? ऑटम की. सो इट इज़ बट ऑब्वियस. तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो यहाँ का ऑटम सीज़न होता है वो अमेरिका में फॉल बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? फॉल. क्यों बोलते हैं फॉल हम? क्योंकि जो ऑटम सीज़न है इसे हम हिंदी में बोलते हैं पतझड़. तो इसमें पत्ते झड़ते हैं नहीं झड़ते? बहुत सारी ट्रीज़ जो हैं दे जस्ट गिव अप देयर लीव्स. सारे पेड़ जो हैं खाली हो जाते हैं, पूरे लीव्स उनके झड़ जाते हैं ब्राउन होके. तो मे बी ड्यू टू दिस रीज़न इन अमेरिका दिस सीज़न इज़ कॉल्ड एज अ फॉल. फेदर डैश ऑन वाटर. वाटर पे क्या फ्लोट करेगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेदर फ्लोट्स ऑन वाटर. डिड यू अटेंड द टेम्पल एट द चैपल? डिड यू अटेंड द टेम्पल एट द चैपल? ही इज़ माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ सन, सो ही इज़ अ डैश cousin, distant cousin. So all these words we have taken from the poem only. So similarly, fill in the blanks with correct words to summarize the poem. This is also very good thing. I can give you this also. The poet cannot remember his mother. He has a faint recollections of his mother. Sometimes while playing with his toys, he recalls the lullaby that she used to sing and put him sleep to his cradle. It's a beautiful story, poem. The poet remembers the scent of his mother when he smells the shivli flowers in the autumn. The scent of the morning prayer also reminds him of his mother when he looks out of the window in his bedroom and fixes his smiling
ऑन द स्काई ही फील्स दैट हिज मदर इज गेजिंग एट हिम। तो आपने ये अच्छे से लर्न कर लेनी है समरी। मैंने आपको ये ज़रूर देनी है समराइज, ये जो समरी है आपने इसको फिलअप्स से फिल करना है, ठीक है। तो कल मैं आपको इसका असाइनमेंट भेजूंगी। मैंने अच्छे से आपको पूरी पोएम समझा दी है।